Today, I am going to discuss how to solve linear programming problem by simplex method. In my earlier videos, I have already shown the graphical method. I also mentioned at the time the limitations for the graphical method is that only maximum two variables can be dealt by graphical method. More than two variables, it is very difficult to plot on the graph paper and to find out the basic feasible result. That's why now it has become mandatory and essential to solve the linear programming problem by algebraic method, that is simplex method. Though the name is simplex, initially you feel the method is not so simplex, whether it is a complex method, but after some times dealing with few problems, again the problem will be simplex. When the rules will be memorized or practiced, then again it will be a simple method, not a complicated method also. Today, I will show you how methodically, in very simple way, you can solve the linear programming by simplex method. Step by step, I will show you. Okay. Detailed mathematical jargon, I am not going to discuss, but the practical approach, the steps that I will discuss how to solve the linear programming problem. Okay. Now I am going to start. Solution. Solution. The first step is you have to convert all the inequalities to equalities. In the case of less than type of constraints, you have to add the slack variables. There are three types of variables you can use in the simplex method: slack variables, surplus variables, and artificial variables. But as in this case only less than type of constraints, that's why we use only slack variables. Artificial and surplus variables I will discuss later on when that type of problem will come. Okay. So first you have to convert these inequalities, in this case less than type, to equalities by inserting slack variables. How you write? From 1, you can write 1 in this way: x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 6. Slack variables. I am writing here slack variables. Slack variables. Okay. Slack variables. In this case, x3 is the slack variables. This side is less than or is equal to. That's why if you add something, only then it will be equal to. The value of x3 will be 0 if this is equal to 6. Other if this is less than 6, say the sum total of this is 4, then the value of x3 will be 2. Suppose the sum total of this is 3, then the value of x3 will be 3 equal to 6. That means the value of x3 is 0 to any position. So x3 is the slack variables. From 2, now from 2, this can be written as 4 x1 plus 3 x2 plus x4. x4 is the slack variables is equal to 12. x4. Why I have kept gap? Because to complete the two equations, I have to write in this 0 into x3. That's why I have kept a space of gap. When it will be practiced, then it will not follow. So in this way, you have to convert the less than type of inequalities to equalities. And suppose this is number 1 here, and this is 2. Okay. This is nothing the form of matrix. What is the matrix? 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1, and this is x1, x2, x3, and x4 is equal to 6 and 12. We know the multiplication of the two matrices row into column. That's why if we multiply 1 into x1 plus 2 into x2 in this way, this can be presented in this form also. So this is a matrix, say A, and this is X, and this is equal to a matrix B. Okay.
Now you have to revise the objective functions because you have taken two new variables, slack variables. What is the effect on the objective function? This is maximum, this is the objective function. The name of this is objective function maximum. This is the maximization problem. So you have to revise this by incorporating the effect of the slack variables. What will be the objective function? So maximize z is equal to 7x1 plus 5x2 plus what is the effect of x3? 0 into x3 plus 0 into x4. Slack variable. Why the coefficient is 0? Actually, this 7 indicates this is the coefficient of variable x1. Say profit per unit. This is also profit per unit. Per unit of this product is contributing 7 rupees. Say per unit of this product contributing 5 rupees. Say we have discussed at the time of formulation of linear programming in this one. But in this case, x3 and x4 variables cannot contribute anything to the objective function because it is the idle resources. It is the surplus or unutilized resources. As the resources are unutilized, that's why it cannot contribute anything to the objective function. This is the concept. This variable is not contributing anything to the objective function as this is the slack variables or unutilized resources, you can say. You can also write this in a matrix form. How? That will be 7, 5, 0, and 0. This is row and column x1, x2, x3, and x2. If you break this, then you will get this. And this is set C and this. Okay. Then you can write this linear programming in a mathematical form as maximize. I'm writing the space is very limited in writing. Now, in whole problem, in matrix form, you can write maximize z is equal to cx subject to this matrix ax is equal to b and x equal to 0. This is the matrix form of the linear programming. I think it is clear. Why I have done in this one? ऐसा करके क्यों किया? Now I am going to show how to use the simplex table. Simplex table कुछ नहीं है, ये जो matrix है इसी को सीधा उठा के वहाँ पर रखिए. So I am erasing this part because this part will not require now, so that I can use the space to transform this matrix form to the simplex table. How you write the simplex table? So after this, I think it is okay. This is the matrix which is in this problem, and this is the objective function, and we have to place this matrix in the simplex table. ये कैसे आया? Already I told you. So first we have to convert the inequalities to equalities by inserting slack variables. Sorry. Slack means unutilized resources, unutilized variable. This is the unutilized. Okay. So in this way, you have formed the equalities और इसी से एक मैट्रिक्स आया, हम लोग इसी को सिंप्लेक्स टेबल पर put दिया. So now I'm erasing this part so that I can draw the table, simplex table. Okay. You write to the copy. Now it is also not required. I'm erasing this part also. Only from this matrix, I will show how we place this information, this matrix to the simplex table. This is the first table, first simplex table. So writing the simplex table. So this is the first simplex table. Simplex table, say table 1. Okay. And this is the variable x1, x2, x3, and x4. You will write in this one. And then you write this matrix 1, 4, 2, 3, 1, 0, and 0, 1. Write this matrix. Okay. And this is the objective function, the coefficient is matrix. You write here 7, 5, 0, and 0. And in this
box, you have to write the basic solution. Okay, and this is the first matrix. And what is this? Actually, what is the problem? Problem here is there are only two equations. The variable is 4. दो equation है, चार variable. Then how you solve it? Equations तो दो ही था, इक्वल टू दो था equations 1 and 2. So you have to solve the 4 variables. दो equations, दो variable you can solve it. So 3 equations, 3 variable, no problem. But 2 equations, 4 variables. Then what you will do? That means first you have to make 2 variables as 0, and only then you can solve it. So what we will do? We will take this matrix as the basis. 1, 0, 0, 1. This matrix will keep, and the rest variables means x3, x1 and x2. This corresponds to x1 and this corresponds to x2. Will be put as 0. And this is x3 and x4. x3 and x4. That is equal to b6 and 9. पहले मैं बोला कि शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. तो क्या करना है कि दो वेरिएबल को फोर्स्ड जीरो कर देना. तो फॉर कन्वीनियंस सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इसी का वेरिएबल को हम लोग रखते हैं और बाकी को जीरो कर देंगे. तो x1 एंड x2 को फोर्स x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0, तब भी जाके वी कैन सॉल्व इट. तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इट. रो इनटू कॉलम, दैट मींस x3 इज इक्वल टू 6. The row into column means 1 into x3 plus 0 into x4 is equal to 6, and 0 into x4 plus 1 into x4 is equal to 12. So x3 is equal to क्या हो जाएगा? x is 6 and x4 sorry 0 into row into column 0 into x3 plus 1 into x4 is equal to 12. That is x4 is equal to 12. So in this place you write the basic solution. This is the initial basic solution. Which variables? x3 and x4. The concept is this: x3 is equal to this and x4 is equal to this. What is the value of x3? x3 is equal to 6 and x4 is equal to 12. Yes, sir. And what is the coefficient of x3? x3 का coefficient क्या है? 0. What is the coefficient of x3? It is 0 and x4 का coefficient is 0. So in this way you have to form the first simplex table. एक बार मैं फिर से repeat कर दूँ तो ये क्या है? This is the basic solution, means initial solution. It is not the optimum or maximum. It is the starting point. By trial and error, by step, we improve the objective function. If the solution is this, then what is the value of the objective function? This is the objective function. You put the value. What is the value of the objective function? x1 is 0. We have done x1 is the variables which are not kept here, not very here, means 0. That means other than these variables, the value is 0. x1 is equal to 0, x2 is equal to 0. We have put x1 is equal to 0. Then what is the value of the objective function? 7 into 0, 7 into 0, x1 value plus 5 into 0 plus what is the value of x3? x3 is 6, 0 into 6 plus 0 into x4 is 12. That means z is equal to, that means z is equal to 0. The starting value of the objective function is 0. This is the starting point, and we will go step by step. Then you will see this value will improve, and finally you have to reach to that value. After that, it is not possible to improve the value, to stop that. That is the solution. ठीक है, इतना तक ठीक है. तो हमने एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जो प्रॉब्लम में है, उसी को मैं उठा के यहाँ जो लिखते हैं कैसे, ये मैट्रिक्स है. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसका आंसर. और यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन मीन स्टार्टिंग सॉल्यूशन, जो एक आधार है, उससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप विल इंप्रूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसी का कोफिशिएंट आपको मैट्रिक्स का वेरिएबल. तो यह x1 और x2 को क्यों जीरो किया, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस. जहाँ 1 0 0 1 है, इसी को हम लोग रखेंगे, रेस्ट वेरिएबल्स को जीरो कर देगा. सर इसे जीरो क्यों करते हैं? द रीजन इज तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, चार वेरिएबल है, तुम तो यूनिट को में सॉल्व नहीं कर पाओगे. दैट्स व्हाई यू हैव टू फोर्स पुट जीरो द अदर वेरिएबल्स. ये रखने से फायदा है, इसलिए यू कैन सॉल्व डायरेक्टली. जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने दिखाया, विल गेट द वैल्यू 6 and 12 इस तरह से. तो अप टू दिस आई थिंक इज ओके. तो सिंप्लेक्स टेबल कुछ नहीं है, इट इज द एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ योर मैट्रिक्स वैल्यूज, उसी से फॉर्म किया है. नाउ आई एम यूजिंग दिस, विल कीप इन योर कॉपी, क्योंकि मेरा पास तो कॉपी है. आई हैव केप्ट इट फॉर चेक, बट टू गेट द स्पेस आई हैव टू इरेज इट. नाउ
we'll apply and slowly we'll improve the objective function and finally reach to the maximum value. How? After doing this, what we will do? This is the index row. Index row value you have to find out. हमने केवल प्रोसेस दिखा रहा है, इसका मैथमेटिकल जर्नल पर नहीं जाना है, नॉट रिकॉर्ड ऑल्सो इन इट्स इंडेक्स रो. इंडेक्स रो का वैल्यू कैसे निकाल? ये जेड जे माइनस सी जी बोलते हैं, जेड जे माइनस सी जी इंडेक्स रो का वैल्यू. तो मैं एक एक करके स्लोली दिखा रहा हूँ. सेम प्रोसेस, एक जन जाओगे तो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट प्रॉब्लम फॉर यू. तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस 7, तब जाके ये वैल्यू. तो मैं करके दिखाते हैं फर्स्ट साइड. तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस और दिस वेक्टर 0 इंटू 4, 0 इंटू 4. ये टोटल जो सम हुआ है इससे माइनस जो प्रॉफिट कोफिशिएंट है माइनस, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है तो 0 मतलब माइनस 7. तो यहाँ पर ये माइनस 7. ठीक है. फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सेम प्रोसेस. दिस इज कांस्टेंट बट इन दिस केस दिस कॉलम वेक्टर हैज बीन चेंज. 2 थे तो 0 इंटू 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 0 into 3. The process is same. 0 into 3. Total कर दूँगा minus 5 जो profit coefficient. So again this is minus 5. यहाँ पर this is minus 5. यहाँ पर क्या लिखोगे? This is 0 into 1, 0 into 1 plus 0 into 1 plus 0 into 0. I am showing the whole process. आगे दिखाएंगे नहीं, जल्दी से कर देंगे. Initially I am showing 0 into 0 जो total हो रहा है minus 0. क्या हो रहा है? टोटल 0 हो रहा है. 0 0 सब 0. इसको वो करते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 टोटल माइनस 0. ठीक है. तो मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ. तो ग्रेटर सर तो आगे जाके इरेज करेंगे. तो क्या वी हैव रीच टू द ऑप्टिमम? कैसे पता चलेगा? जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 अगर होता है, दिस इज द इंडेक्स रो. इंडेक्स रो इज इंडिकेटर वी हैव रीच टू द ऑप्टिमम. दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट हैज बीन अचीव्ड. इसका सारा एलिमेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो विल स्टॉप. तो प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो वही बेस्ट सॉल्यूशन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन. लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं है. सारा तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, या तो नेगेटिव आ गया. ये भी नेगेटिव है, ये 0 0 है. तो ये ठीक है, लेकिन ये तो नेगेटिव है. तो क्या करना है? तो इफ मोर देन, ठीक से सुनना, यू हैव टू मेमोराइज इट एंड यू शुड पुट एज अ रूल. इफ मोर देन वन नेगेटिव कम्स, अगर एक से अधिक नेगेटिव आ रहा है then select the most negative. Otherwise क्या हो जाएगा? तो स्टेप्स बढ़ जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे फिर इम्प्रूवमेंट तो और आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना. इसलिए मोस्ट नेगेटिव यू सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव. तो यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? -5 and -5. दिस इज द मोस्ट. यू सिलेक्ट दिस कॉलम. दिस इज कॉल्ड की कॉलम. इसका नाम है टेक्निकल नेम की कॉलम. आई थिंक इट इज क्लियर. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वेरिएबल को अगर मैं डिसीजन में लाएंगे, एक्चुअली बेसिक वेरिएबल्स मींस डिसीजन वेरिएबल्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन करता है. तो इफ यू ब्रिंग दिस वैल्यू टू द बेसिस तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो ये इंडिकेशन है. ये भी अनलेस भी बढ़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगा ये नहीं, इसलिए मोस्ट नेगेटिव है. तो इसी को हमें डिसीजन में लाएंगे. तो की कॉलम मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, यू शुड ब्रिंग टू द बेसिस. और ये बेसिस में तो 2 पोजीशन है ना, ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन है. तो इसको मैं कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे. ये क्वेश्चन अवेज कर रहे हैं. तो ये डिसाइड करने के लिए व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पर ये रेशियो को निकालना है. कौन सा रेशियो मैं करके दिखाता हूँ, तो तुमको इसको नोट करके प्रैक्टिस करना है. कैसे करना है? दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 6. 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 3. ये रेशियो से जो लोएस्ट है, दोनों के से लोएस्ट कौन सा है? दोनों से ये. तो यहाँ पर जाएगा. ये x1 को मैं अगला में यहाँ पर रख देंगे. और ये क्लियर, मैं धीरे धीरे सारा रूल बोलते जा रहे हैं. ये रूल को तुम नोट डाउन करके यही फॉलो करना है. इसलिए शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट जैसे रूल मेमोराइज हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तरह का प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं किया. तो यहाँ पर जाएगा. अगला जो टेबल बाय इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसको हटा के यहाँ पर ये रख लेंगे, क्योंकि इससे फायदा नहीं. यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है. दिस इज द रूल. ठीक है. अब मैं यहाँ एक्सेप्शन थोड़ा बता दूँ. सर अगर ऐसा होता है, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, तो क्या कीजिएगा? एट दैट टाइम यू कैन टेक एनी वन. तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, नो इशू. ठीक है. अच्छा, अब ये जो है रेशियो भी बराबर हो जाएगा, तो क्या करोगे? देन यू कैन प्लेस एट एनी वन प्लेस.
अच्छा सर, यहाँ अगर कोई नेगेटिव रहता तो क्या करते हैं? नेगेटिव को रेशियो निकालने में यूज नहीं करोगे, उसको एक्सक्लूड कर देना है। मान लो ये -2 था तो एक ही रेशियो बच जाता है, तो डेफिनेट यहाँ पर होगा। या मान लो ये माइनस रहता है तो ये रेशियो में नहीं निकालेंगे, तो वो एक ही रेशियो है तो उसी पड़ जाएगा। तो इस एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर उसका जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी मैं बता, तो मैं आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली है स्पेस लिमिटेशन, तो इसलिए मैं इसको यूज कर देता हूँ, तो टेबल को एक्सटेंड कर दिया। तो हाउ विल एक्सटेंड इट, धीरे देखो, मैं इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, वापिस से कर रहे हैं मेरे पास स्केल, तो फिर इसके लिए चलो अभी इमीडिएट मेरा सामने नहीं है, तो वापिस से कर देते हैं। तो क्या बोला, x3 रह जाएगा, तो x3 में कोई चेंज नहीं, तो x4 का जगह x1 रह जाएगा। वाई तो मैं ऑलरेडी बता दी, मोस्ट नेगेटिव ये करिए, अगर ये मोस्ट नेगेटिव, ये से -8 होता तो x2 आता, दिस इज, और कौन सा हटेगा, दैट डिपेंड्स ऑन रेशियो, बर्स्ट रेशियो पर आएगा। तो x1 पर मैं लिख दिए, तो ये नेगेटिव इसका, तो ये हो जाएगा बाहर की कॉलम है, और जब रेशियो ये छोटा होता है तो इस एलिमेंट को बोलते हैं की एलिमेंट। दिस इज की एलिमेंट, इसका नाम है की एलिमेंट, यू कैन राइट इट आल्सो इन द बॉक्स में, की एलिमेंट। तो करना क्या है, अच्छा इसका कोफिशिएंट यहाँ लिख देते हैं, x3 का तो 0 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x1, x1 का कोफिशिएंट ये 7, यहाँ पर 7, इट इज ओके। अब डिवाइड द एंटायर रो बाय 4, की एलिमेंट से एंटायर रो को डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने इसको एलिमेंट लिख दिया। तो 12/4 मीन्स 3, 4/4 मीन्स 1, 4 से एंटायर रो को डिवाइड कर देंगे, 3/4, 0/4 मीन्स 0 और 1/4। हम लोग जानते हैं किसी भी रो ऑपरेशन में, किसी भी इक्वेशन का दोनों साइड अगर एक ही चीज से डिवाइड करते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट। यहाँ का भी वही बात है, तो इक्वल टू है ना, तो पूरा इक्वेशन 4x1 + 3x2 + 0x2 इक्वल टू 12। तो इंटायर इक्वेशन को मैंने किसी भी एक डिजिट से, किसी भी एक वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिकली कोई एडवांस कुछ नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। फिर भी सर आप क्यों ऐसा डिवाइड किए, कारण क्या है, आपको फायदा क्या है? फायदा है कि जैसे ही मैं डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 बन गया ना, 1 बन जाने से मैं फोर्स यहाँ 0 करूँगा, तो रो ऑपरेशन का फिर मैं यहाँ 0 करेंगे। देखोगे यहाँ पे 0 1 और एंड 1 0, तो नीचे लिख देना एंड 1 0 बन जाएगा, जिसका बेसिस है 1 0 1 ऐसा बन जाएगा। इससे तुम्हारा जो है फिर सॉल्व आसान हो जाएगा। तो यू हैव टू डू दिस। तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया, 4 से डिवाइड किया। अगर मान लो 5 रहता तो 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ अगर 1/3 रहता तो 1/3 से डिवाइड करते, मतलब यहाँ 1 कर रहा है, ये पर्पस है। तो सर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? इसका पीछे का जो बहुत लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि वो जो मैथमेटिक्स का लोग पढ़ते हैं वहाँ अप्लाई मैथमेटिक्स, तो उन लोग उसको देखेंगे। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो उसी पर जाओ तो बेटर रहेगा। तो इसको 0 बनाना है, तो अब 0 कैसे बनाएंगे ये देखो, एक रूल को समझ लो तो आगे को भी वही रूल ही लगाएंगे। इसलिए बोल रहे कि शुरू में कॉम्प्लेक्स है, बाद में सिंप्लेक्स हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा। तो ये मैंने 1 कर दिया, तो इट इज़ रिवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या होगा। जो सबसे आसान तरीका है मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड ऑल्सो एंड इंग्लिश, बेंगोली, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल साइंस, तो उन लोगों का ये दिक्कत आ सकता है। एंड दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रोसेस। जैसे इंजीनियरिंग बुक में जाओगे तो देयर आर सो मेनी अदर प्रोसेस ऑल्सो, लेकिन कोई फर्क नहीं है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, मैंने बहुत देखा है इस पर, अल्टीमेटली आई हैव रीच टू द कंक्लूजन दिस इज द बेस्ट। तो कैसे करोगे यहाँ, तो ओल्ड रो को लिख लेना यहाँ से। ये ओल्ड रो, ये तो इक्वल टू ये हो जाता है ना, तो दिखाया था इक्वल टू। ये ओल्ड रो को मैं नीचे बाद में बिटा दूंगा, तो आई नीड द स्पेस, तो करके दिखा रहे। इन ओल्ड रो को यहाँ पर ये सब रफ वर्क को दिखाना है। इन एग्जाम इट इज इम्पोर्टेंट, अगर रफ वर्क को नहीं दिखाओ तो देखिए सोचेगा कोई उतार दिया है। 6 1 2 1 एंड 0, ये तुम्हारा ओल्ड रो है। तो कहाँ पर 0 बनाना है, यू हैव टू सेकंड पोजीशन, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सेकंड पोजीशन में मेरे को 0 चाहिए। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दी रिवाइज रो, जो नया जो बना है इसका हेल्प लेते हुए मेरे को ओल्ड रो को इस तरह से करेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये ओल्ड रो का सेकंड प्लेस पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इंटर रो को अगर मैं
सबट्रैक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। देखो मैं करते हैं तो ओल्ड रिवाइज इज दिस 3 1 3/4 0 एंड क्लियर। जस्ट एक रो से एक रो सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रो ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, ये देखो 0 हो गया, अभी क्या हो जाएगा 4 4 गुना 8 5/4, ये 1 एंड ये -1/4 इस तरह से। तो तुम्हारा इसका जो वैल्यू है यही सब आ जाएगा। 3 ये 0 लाने तो 0 आ गया है, 5/4 5 5/4 1 1 एंड -1/4 इस तरह से। और उसके बाद फिर इंग्लिश का वैल्यू निकालते। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ तो सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट अगेन। तो क्या करना है, तो फर्स्ट तो क्या करना है, जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट कौन सा है, कैसे फाइंड, तो फर्स्ट की कॉलम हो गया जिसको मोस्ट नेगेटिव और जिसमें लोएस्ट रो रेशियो आता है तो उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को की एलिमेंट बोलते हैं। तो इसे एंटायर रो को डिवाइड करके एंटायर रो को डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड किया तो 3 1 3/4 0 और इस तरह से ये रिवाइज हो गई। अगर मानो कि यह 2 होता रेशियो, 2 होने से की एलिमेंट कौन सा होता है, ये की एलिमेंट, और इसी से मैं एंटायर रो को डिवाइड करता हूँ। बहुत समझ गए, तो ये रिवाइज हो गया। लेकिन ये वैल्यू तो मेरे पास था नहीं, ये कैसा आएगा चेंज होकर, तो इस पर नियम ये है, तो ओल्ड रो को लिखो और यहाँ 4 जहाँ 1 आया वहाँ ऊपर में 0 करना, उसको 0 लगेगा। अगर 1 यहाँ आता है यहाँ 0 करना पड़ेगा, तो उस में देखेंगे किस तरह से करने से 0 आता है। तो मैंने क्या किया, तो जो मेरा ओल्ड रो है वो लिख लिया पहले, और फोर्थ पोजीशन में 0 करना है, सर फर्स्ट सेकंड पोजीशन में। तो इसको विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, तो यह ऑलरेडी 1 है, इसे सिंपली सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए मैंने सवाल कुछ नहीं तो बोले से ये नहीं है, सपोज कर दिया 3 है, तो मैं क्या करते, यहाँ 3 है, सपोज कर यहाँ 3 से सपोज, तो क्या करते मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 3 से करने से 9 होता या 3 होता, सब होते जाता, तो माइनस करने से फिर 0 आ जाता। तो इस तरह से तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो मैं इसको बिता देते हैं कि आई हैव टू यूज दिस स्पेस, तो कैसे क्या बता दिए। तो वीडियो में है इसलिए यू कैन चेक रिपीटेडली, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। अब मेरे को ये सब इंडेक्स का वैल्यू निकालना है, तो रूल तो मैंने बता दिया था, वही सेम रूल है। तो प्लीज जब पे 0 1 एंड 1 0 और एक चेक देखोगे, जैसे ही ये 1 एंड तो इस वेरिएबल 1 का साथ यहाँ पर हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं आया तो गलती हो गई 0, और यहाँ तक 1 यहाँ है तो ये वैल्यू, तो ये जस्ट चेक कर देगा और कुछ नहीं, और सॉल्व की तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस। मैंने पहले बताया था, मैं करके दिखाता हूँ फिर से। 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू, ये सब हाफ में रहेगा, माइनस ये जो कोफिशिएंट है तो कितना जा रहा है, तो ये 0 है, 7 माइनस 7 0, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0 इंटू 5/4 प्लस 7 इंटू 3/7 इंटू 3/4, जो टोटल आ रहा है -5 इज इक्वल टू 21/4 -5 इक्वल टू 4 -20 इक्वल टू 1/4। तो ये होगा 1/4, ठीक है। और फिर देखो इधर का 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 कौन सा इसका प्रॉब्लम, सॉरी 1 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 7 या 7 इंटू 0, टोटल जो होना है -0। तो ये सब 0 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। और लास्ट लेके 0 इंटू दिस, तो 0 प्लस 7 इंटू 1/4, दैट इज 7/4, 7 इंटू 1/4, 7/4 माइनस 0, दैट इज 7/4। ओके, नाउ now check all the index flow values, that is zz minus zz minus cz, this is greater than is equal to 0। तो ये भी 0 है, ये तो बड़ा पॉजिटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट्स यू आर रीच्ड टू द ऑप्टिमम, तो बेस पर पहुंच गए हैं, आगे और कुछ करेगा नहीं। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर रहता है, आंसर यहाँ पर रहता है, जो इसमें नहीं है वो सीधे सीधे 0 हो जाएगा। Then what is the answer? What will be the value of the variables? x1 is equal to 3, x3, x2 तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, x2 is equal to 0। मैं पहले बोला जो यहाँ पर नहीं है वो 0 है। x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे स्लैक वेरिएबल्स वैल्यू 3, और x4 का क्योंकि तुम्हारे पास 4 वेरिएबल है, x4 x4, तो x4 क्या हो जाएगा, ये 0। Then what is the value of the objective function z, जो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इम्प्रूव किया
जेड तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉपी पे तुम्हारा नोट किया हुआ है 7x1 प्लस 5x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4। ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 इंटू x3 क्या है? 3, 3 प्लस 5 इंटू x2 0 है प्लस 0 इंटू x3 कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए ये x3 रहते कोई भी कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। x4 का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। ठीक है, x3 का ठीक है, तो टोटल वैल्यू 90 यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज योर आंसर एंड जेड मैक्सिमम, जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दिया है। दिस इज योर आंसर, कंप्लीट आंसर। आई थिंक दिस इज योर आंसर। दिस इज a small problem, though it is small, but the rules मोटा-मोटी सॉल्व है। आगे जाकर और एक दो प्रॉब्लम हम लोग दिखाएंगे तो इन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे बोला तो उसको बार बार देख के उस रूल को मैंने एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम बाय सिंपलेक्स मेथड। तो कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो यू प्लीज राइट द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, नो इश्यूज। अच्छा सर क्रॉस चेक कर लीजिए कि दो वेरिएबल है तो आंसर तुम्हारा ठीक आया कि नहीं, तो ग्राफिकल मेथड में भी चेक कर सकते हो। तो ग्राफिकल मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बात है जो ग्राफिकल मेथड यू कैन सॉल्व मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स। लेकिन अगर 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल रियल वर्ल्ड में तो 30-40 वेरिएबल तो चलता है, कंप्यूटर इज यूज्ड तो उस में तो ये प्रोसेस बिना कोई चारा नहीं है, सही यू हैव टू अंडरस्टैंड। एग्जाम दे रहा है 3 to 4 वेरिएबल्स मैक्सिमम दिया जाएगा। तो जबकि दो वेरिएबल का प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रोसेस, अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन, यू हैव टू सॉल्व बाय सिंपलेक्स, तो आई थिंक इट इज बेटर टू सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि इतना प्रोसेस करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। और ग्राफिकल में मैंने इसका 1/4 टाइम दे कर सॉल्व किया। हमने इस बात नहीं जाना है कि वी हैव डन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकल मेथड, तो यू कैन चेक इट, तो रिजल्ट तुम्हारा सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसीलिए छोटा प्रॉब्लम नहीं है शुरू में, बट एग्जाम में इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रूल्स जानते हो कि नहीं, फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी गुड, ठीक है। तो मोटामोटी अबाउट दिस, तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी दे देना, तो और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।